Welcome to all of you in Dinesh sir classes. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है सीबीएसई और बीएसईबी दोनों बोर्ड के लिए। क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री। The difference of squares of two numbers is 180. The squares of the smaller number is 8 times the larger number. We have to find two numbers. We have to find the above two numbers. Solution: let the two numbers are x and y. Two numbers are x and y such that x is greater than y. We have supposed the two numbers x and y in which x is greater than y. Question है the difference of squares of two numbers is 180 degree. Squares of two numbers, the greater number is x and the smaller number is y. Then according to question, the difference of squares of these two numbers, that is x square minus y square, the difference of squares of two numbers is 180. The difference of the squares of two numbers in 180. Therefore, x square minus y square is equal to 180. Greater number is x and the smaller number is y. The squares of the greater number, that is x square, and the square of the smaller number, that is y square, and their differences means x square minus y square is equal to 180. Second part question का है the square of the smaller number is 8 times the larger number. The smaller number y, therefore y square is equal to 8 times the larger number. 8 into the larger number is x. Therefore y square is equal to 8x. And x square minus y square is equal to 180. Let this is equation number 1. Now putting y square is equal to 8x in equation 1. We have x square minus y square is equal to 180. Since x square minus y square, x square minus, and putting the value of y square, and that value is 8x. Therefore x square minus 8x is equal to 180 because y square is equal to 8x. अब इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 सिंस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0. अब हम लोग इस 180 को फैक्टराइज करते हैं. फैक्टर 1, the coefficient of x square is equal to 1 and the constant term is minus 180, that's equal to minus 180. इस 180 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ेंगे तो ये दो नंबर हमें प्राप्त होगा, उन दोनों का सम कितना हो -8 और दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वह होगा -180 एंड दैट नंबर वुड बी 10 और -80 बिकॉज 10 और -80 दोनों को अगर प्लस किया जाए तो इसका रिजल्ट हमें दोनों का सम हो जाएगा -8 और दोनों का प्रोडक्ट कराया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू -180. देयरफॉर इट विल बी रिटन एज x स्क्वायर minus 18x plus 10x minus 180 is equal to 0.
x कॉमन लेते हैं, ये हो जाता है x माइनस 18, और यहाँ 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, सिंस x माइनस 18 और इंटू x प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 0। Therefore, x equal to 18 and x equal to minus 10. We have the value of x 18 or 18 and minus 10. First number x, if x is equal to 18, the difference of the squares of two numbers. The x is equal to 18 है, since y square is equal to 8x is equal to 8 और into 18, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 144, since y is equal to plus minus root under 114, that is equal to plus minus 12, since answer x 18 and plus 12 and 18 and 12 and 18 and minus, ये दोनों सेम आंसर का इसका हुआ जो इसको सेटिस्फाइड करता है। 18 एंड x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू प्लस माइनस 12, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let a train travel 360 kilometers at a uniform speed. Let this distance A and B, that is 360 kilometers. A और B के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, and the distance traveled by the train, that is equal to 360 kilometer. Therefore, time taken, that is t1 equal to, time is equal to होता है distance by speed. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड बाई स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू 360 बाई x आवर्स, दैट इज t1 360 बाई x आवर्स। और ट्रेन travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers more, now the speed of the train is equal to 5 kilometers more, that is equal to x plus 5 kilometer per hour. Therefore, time taken by the train T2, and that is equal to 360 by x plus 4 hours. 360 distance and by the speed x plus 5 hours. Time T1 360 by x hours, and time T2 is 360 by x plus 5 hours.
क्वेश्चन है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर it would have taken 1 hour less time for the same journey. अब सेम जर्नी के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have t1 minus t2 and that is equal to 1 hour. Putting the value of t1 that is 360 by x minus 360 by x plus 5 and that is equal to 1. 360 by x minus 360 by x plus 5 is equal to 1. अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 5 x कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल तो 360 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1 और एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 360x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 एंड 5 3 जा 15 और 3 दैट इज 18. यह हुआ x इंटू एक्स प्लस 5 आई इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 360 इंटू एक्स तो 360 प्लस 360 इंटू 5 दैट इज 1800 and minus 360 into x and this 360 positive and this is negative cancel हो गया. इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 and that is equal to 0. This is a quadratic equation. अब इस quadratic equation को एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 को हम लोग को फैक्टराइज करना है. तो इसके लिए अब इस 1800 को हम लोग ऐसे करते हैं 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस 1800 दैट इज माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू माइनस 1800 और इस 1800 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा 45 और इधर हो जाएगा हम लोग के पास 40. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 आ जाएगा एंड 5 4 5 जा 20 कैरी 2 एंड 4 4 जा 16 और 2 18 हमें 2 प्राप्त हुआ. तो इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए हमें 2 डिजिट्स लेना होगा प्लस 45 and minus 40. Why? Because 45 minus 40 दोनों को ऐड करते हैं तो बीच का कोएफिशिएंट बीच वाले टर्म 5x है, इसका कोएफिशिएंट 5 प्राप्त होता है और 45 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस 1800 प्राप्त होता है. इसीलिए इसका फैक्टराइजेशन हो गया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 एंड दैट इज इक्वल टू 0. और यहाँ हम लोग x कॉमन लेते हैं तो यह हो जाता है x प्लस 45 और यहाँ माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 45 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0. सिंस x का वैल्यू माइनस 45 एंड 40 प्राप्त होता है बट हेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 45 देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर. दिस 40 किलोमीटर पर आवर्स इज the required speed. Find the speed of the train. Therefore the speed of the train equal to 40 kilometer per hour.
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। जो टैप है एक लार्जर है, दूसरा स्मॉलर है, यह दोनों मिलकर टैंक को भरने में 9 होल 3/8 आवर्स टाइम लेता है। Two water taps together can fill a tank in 9 holes 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 8 hours, less than the smaller one to fill the tank separately. Means larger diameter smaller diameter से 10 hours कम समय लेता है, takes 10 hours less कम समय लिया, that the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which find the time in which each tap can separately fill the tank. Solution: let the larger tap takes X hours to fill the tank. Let the larger tap takes X hours to fill the tank. Two water taps together can fill a tank in 9 holes 3/8 hours. The larger tap takes 10 hours, less than the smaller one. If the larger tap takes X hours to fill the tank, therefore the smaller tap can take X plus 10 hours to fill the tank. इसे X plus 10 आवर्स का टाइम लग जाएगा। लार्जर टैप X आवर्स में भरता है टैंक को, तो स्मॉलर को उसे भरने में कितना टाइम लगेगा? X plus 10 आवर्स टू फिल दैट टाइम। अब देखो, लार्जर टैप X आवर्स में टैंक को फिल करता है, लार्जर X आवर्स में टैंक को फिल करता है, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x। thus according to question 1/x and plus इसको लग जाएगा 1/x plus 10 and that is equal to 1/, और टोटल टाइम है 9 होल 3/8 आवर्स। लार्जर टैप टेक्स X आवर्स टू फिल द टैंक, तो X आवर्स में वह टैंक को फिल करता है, तो X आवर्स में टैंक भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x पार्ट भरेगा। ये लार्जर के लिए हुआ, और स्मॉलर X plus 10 आवर्स में 1 टैंक को भरेगा, तो 1 आवर में इन 1 आवर कितना भरेगा? 1/x plus 10, और दोनों एक साथ ज्वाइंट होकर ये 1 आवर में भरता है 1/x पार्ट, और दूसरा 1 आवर में भरता है 1/x plus 10 पार्ट। और क्वेश्चन है कि दोनों को भरने में 9 होल 1/8 आवर्स का टाइम लगता है, तो 1 आवर में कितना लगेगा? 1 आवर में 1 उलट जाएगा 9 होल 3/8। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। इक्वेशन प्राप्त हो गया, यह हो गया। एलसीएम लेते हैं तो x और इंटू एक्स प्लस 10। अब इस एलसीएम में x से डिवाइड किया तो हो गया x plus 10 एंड प्लस x plus 10 कैंसिल हो गया, तो बच गया x, इसको x से मल्टीप्लाई किया, यह हुआ 1 होल, और इसका तोड़ा गया 9 8 जा 72 एंड प्लस 3 75/8। नेक्स्ट स्टेप, x plus x 2x प्लस 10 बाई, यह हो जाएगा x²
प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। नेक्स्ट स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x प्लस 10। therefore 8x स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू माइनस 75 टू जा 150x एंड अभी उधर ही रहने दे रहे हैं। 75 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 150x एंड प्लस 700। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 8x स्क्वायर और 80x में से 150x माइनस करते हैं तो माइनस 0 एंड 5 में से 8 माइनस हुआ तो 7 माइनस 750 इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 35x एंड माइनस 2 से इसमें डिवाइड करना है। 2 से 2 3 जा 6 और 1 15 हुआ, 2 7 जा 14 और 1 2 5 जा 0। अब हमें 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इसका अब हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए इसको हटा दिया जाए। देखो फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर है जिसका कोएफिशिएंट हम लोग के पास है 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 375। इस 4 इंटू माइनस 375 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है माइनस एंड 5 4 जा 20 2 और 7 4 जा 28 एंड 2 30 3 4 3 जा 12 और 3 16 माइनस 1500। और इस 1500 को अगर हम लोग तोड़ते हैं फैक्टराइज करेंगे इसको 1500 का तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 60 है ना 60 और 25 दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 0 हो जाएगा। 6 30 3 और 6 2 12 3 15। तो 1500 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 60 और 25। तो ऐसे किया गया कि अगर 60 और 25 अगर माइनस 60 रखा जाए, ये माइनस 1500 था तो मल्टीप्लाई करने पर इतना हो गया। और दोनों को अगर प्लस करते हैं माइनस 60 प्लस 25 तो माइनस 35 प्राप्त हो जा रहा है। और माइनस 60 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त होगा। इसलिए दो फैक्टर इसका हम लोग को मिल गया माइनस 60x एंड प्लस 25x और माइनस 375 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से 4x यह हो जाएगा x माइनस और 15 4 जा 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर एंड 4x इंटू माइनस 15 दैट इज 1 का साथ माइनस 60x एंड प्लस 25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 15 इक्वल टू 0। 25 इंटू एक्स दैट इज 25x एंड 25 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस 375 इक्वल टू 0। हेंस x माइनस 15 x माइनस 15
दोनों पार्ट में है, कॉमन लिया गया तो बच गया 4x + 25 = 0. Therefore the value of x is 15 and -25/4. But x may not be equal to -25/4. Therefore x is equal to 15 and यह x 15 आवर्स हो गया है ना. यहाँ पर कह रहा है 2 water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. और x जो हम लोग का सपोज किया गया था वह किसके लिए था, लार्जर के लिए था x. इट मीन्स लार्जर टैंक 15 आवर्स अगर लेता है तो स्मॉलर कितना लेगा, x + 10 मीन्स 15 + 10 यानी कि 25 आवर्स. तो larger tap takes 15 hours. The larger tap takes 15 hours and the smaller takes 25 hours. 25 hours और ये दोनों ठीक है. ओके. Question number 10. An express train takes 1 hour less, 1 घंटा कम समय लेता है than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. मीन्स मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर. मान लो ये मैसूर है. The distance between Mysore and Bangalore, and this is Bangalore. और मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर. 132 kilometers. The distance between Mysore and Bangalore. और यहाँ से 2 ट्रेन चलती है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन है. 132 kilometers. Without taking into consideration time, they stop at intermediate station. यानी बीच में किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उस टाइम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया. If the average speed of the express train is 11 km/h more than that of the passenger train, तो अगर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x km/h है, therefore एक्सप्रेस का स्पीड हो जाएगा x + 11 km/h. x जो हो गया या पैसेंजर ट्रेन का हो गया है ना, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड, और ये हो गया एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड. एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड पैसेंजर का x km/h, देन एक्सप्रेस ट्रेन का x + 11 km/h. पैसेंजर से एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है. तो सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, द स्पीड ऑफ the passenger train is equal to x km/h. Therefore, the speed of the express train
एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड मेल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, मोर मीन्स अधिक। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, therefore the speed of the express train must be x + 11 kilometer per hour. Then time taken by passenger train will be equal to distance 132 kilometers, so 132 by x hours, and the time taken by express train that will be equal to 132 by speed x + 11 hours. We know speed is equal to distance by time. Distance by time. Therefore, time must be equal to distance by speed. Distance by speed. यहाँ पर time taken by passenger train, distance covered by passenger train by speed of the passenger train, that is 132 by x hour, and the express train, that is 132 by x + 11 hours. Question say, according to question, now according to question, this time taken by passenger train and this time is taken by express train. According to question, we have 132 by x minus 132 by x plus 11, and that is equal to 1 hour. Yeah. 132 by x minus 132 by x plus 11, and that is equal to 1 hour. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो x × x + 11, दैट इज इक्वल टू 132। x कैंसिल हो गया, अब ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x + 11 माइनस x + 11 कैंसिल, तो हो जाएगा 132x इक्वल टू 1, और x² एंड प्लस 11x दैट इज इक्वल टू 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 2 = 22 कैरी 2, 11 × 3 = 33 एंड 2 35, 3 11 × 1 = 11 and 3 14, and minus 132x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया, x को x से मल्टीप्लाई किया गया तो x² और x को 11 से तो 11x हुआ। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 132 को x से तो 132x प्लस 132 को 11 से तो 11 × 2 = 22 कैरी 2, 11 × 3 = 33 and 2 35 कैरी 3, and 11 × 1 = 11 and plus 3 14, and minus 132x. This 132 positive and negative will cancel each other. Therefore, we have x² plus 11x minus 1452, that is equal to 0. x² plus 11x minus 1452 is equal to 0. अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तो 1452 इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। 1452 तो इसको तोड़ते हैं अगर
ये मिलता है हम लोग को, अगर एक टर्म लिया गया -33, तो दूसरा हम लोग को ये 44 लेने से ये टूट जाएगा। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं 1452 को, तो हमें ये प्राप्त होगा -33 एंड 44, यानी कि 33 या 44 को अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1452 होगा। अगर 1452 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 33 और 54 होगा। तो इसे हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे सेट करें, -33x एंड प्लस